Assalamualaikum. Today we will talk about the lecture metabolism. So what is metabolism? Actually, metabolism is a set of chemical reactions that take place inside the cell. These reactions collectively constitute metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं metabolism. So there are two types of metabolic reactions. Number one is catabolic and number two is anabolic reaction. So I will explain what is catabolic reaction. Catabolic reactions are very easy. They are actually breakdown of larger molecules into smaller molecules. Carbohydrates, for example, carbohydrates are larger molecules. They can be broken down into smaller subunits, smaller molecules. For example, glucose can be broken down into carbon dioxide in water. Proteins can be broken down into amino acids. Then these are the example of catabolic reactions. So again, catabolic reactions क्या होते हैं? Catabolic reactions वो होते हैं जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. इस केमिकल रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट, you can see in the diagram that larger molecule is broken down into the smaller subunits and energy is released in the process. Now come to the anabolic reactions. What are anabolic reactions? These are synthesis of larger molecules from smaller subunits, and in this process, in this biochemical process, energy is stored in larger molecules. Larger molecules कौन से होते हैं? Proteins, carbohydrates, fats. Then chemical building of molecules. It is also known as chemical building of molecules. Once again, focus on anabolic reactions. Anabolic reaction कौन से होते हैं? ऐसे reaction जिनमें बड़े molecules बनते हैं छोटे सब यूनिट्स से, जैसे प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना और फैट्स का बनना. तो actually it is chemical building of molecules. So what is chemical synthesis? It is also known as the chemical synthesis. Again, catabolic and anabolic pathways are opposite to each other. Catabolic is breakdown and anabolic is synthesis of larger molecules. Now come to the energetics of biochemical reactions. हर बायोकेमिकल रिएक्शन कोई ना कोई एनर्जेटिक्स होती है. या वो एनर्जी रिलीज करेगा या वो एनर्जी स्टोर करेगा. ठीक है. All biochemical reactions are associated with energy transformations. So energy transformation, energy release or energy capture in a biochemical reaction inside the cell is known as biochemical bioenergetics. So bioenergetics is dealing with energy transformation associated with metabolism. इसमें हम क्या देखते हैं? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म और एनर्जी स्टोर्ड, दो चीज़ें हम देखते हैं. सेकंड क्या है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, इट कैन बी यूज्ड for working in the cell. For example, it can be used in the body reactions, that is known as homeostasis. Secondly, it can be used in the movement of molecules inside the cell. अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो सेल में it is tied in the form of inorganic molecules. एनर्जी जो हमें किस फॉर्म में मिलती है? It is tied to inorganic molecules. ओके. अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो कौन से हो सकते हैं?
ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम केमिकल रिएक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज एक्सोगोनिक एंड द सेकेंड वन इज एंडोगोनिक. फर्स्ट वन इज एक्सोगोनिक एंड द सेकेंड वन इज एंडोगोनिक. एक्सोगोनिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी एक्सर्वीन आउटसाइड एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये वाले रिएक्शन अमूमन कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है या एनर्जी यूज़ हो रही है, और अमूमन ये कौन से वाले रिएक्शन होते हैं? एनाबॉलिक. So on the basis of bioenergetics, we divide into two categories. Number one is exogonic and second one is endergonic. Energetically favorable reaction coupled with activated carrier molecules. अगर हम एनर्जी की बात करें तो रिएक्शंस में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कैरियर मॉलिक्यूल्स. एनर्जी जो है वो किसी फॉर्म में रिलीज हो रही है, और कैरियर मॉलिक्यूल कौन सा? एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल कौन सा? दीज आर इनऑर्गेनिक, और इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यू कैन सी द फॉर्मूला. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर द इमीडिएट एक्सेस ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है वो हमें हर रिएक्शन में अगर रिलीज़ होती है तो इस फॉर्म में मिलती है, और अगर यूज़ होती है तो भी इस फॉर्म में एटीपी को ही यूज़ किया जाता है. इसको हम करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द करेंसी ऑफ सेल. आपने देखा होगा कि हर मुल्क की अलग करेंसी है, जैसे यूएस की डॉलर है, पाकिस्तान की रुपीज़ है. तो यहाँ पे करेंसी ऑफ सेल जो है, सेल की जो करेंसी है वो एक है, और वो क्या है? एटीपी. तो हम बात करेंगे कि कैसे मेटाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी रिलीज होती है. यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, एंड इफ़ लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी इज रिलीज, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया. तो हम इसमें बात करेंगे, फोकस करेंगे शुगर्स के मेटाबॉलिज्म पे. शुगर्स में क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी रिलीज, फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी. तो अब आप देखिए, बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का क्या है कि आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज इज जनरली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन 10 chemical reactions. In 10 chemical reactions that are enzyme based or enzyme catalyzed. 10 chemical reactions को यूज़ करके ग्लूकोज क्या है? ब्रेक डाउन होता है इन पायरुवेट. एक ग्लूकोज क्योंकि 6 कार्बन से बनता है, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के. देन एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स. एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? NADH2 एंड ATP. इसमें ये होता है कि NADH रिलीज हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स एंड ATP 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो 2 जो ATPs हैं वो यूज़ हो जाते हैं इन द बिगनिंग. सो नेट ATP कंज्यूम, नेट ATP प्रोडक्शन इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन द ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म में. अब हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो इज कंबाइंड टू 1 phosphate molecule. It releases ATP. ATP is actually the energy currency. ATP की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है. सो लेट्स गो इनटू द समरी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली कैसे ब्रेक डाउन होता है? अगर आप देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम जाएँ तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस.
दो पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड विच इज़ फर्दर ब्रेक डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो it is used by a special process that is known as TCA cycle। TCA cycle में एसाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ होता है और it is the sum of 8 chemical reactions and different enzymes। TCA cycle जो है वो इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 8 केमिकल रिएक्शंस और इसमें हर केमिकल रिएक्शन जो है वो हर केमिकल रिएक्शन एक एंजाइम से कैटालाइज्ड है। अब इसका जो रिजल्ट है हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या बन रहे हैं? एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। 3 टाइप ऑफ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। पहला है NAD, दूसरा है FAD, तीसरा है ATP। तो 2 ATP बनते हैं और बाकी जो है वो डिफरेंट एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? ATP। अब NAD और FAD से भी हमने एनर्जी रिलीज़ करनी है तो हम मूव करेंगे TCA साइकिल से नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जिससे होता क्या है कि इन एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल से ATP की फॉर्म में एनर्जी निकल आती है और वो कौन कितने ATPs बनते हैं इन्हीं कैरियर मॉलिक्यूल से? नेट जो हमारे पास आ रहा है वो है 32 से 34 ATP। और ये किस प्रोसेस के ज़रिए निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है कहाँ पे हो रही होती है? इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। सो इस तरीके से ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज 34 ATP in at the end of electron transport chain and 2 ATP at the end of glycolysis. Total are 36 ATPs are produced in eukaryotes where oxygen was available and after glycolysis जो मूव किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन TCA साइकिल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है तो इसके लिए एक खास प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सो दिस इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस वी कैन सी इन द डायग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजनस बेसिस में है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए DNA फॉर्मेशन में, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स में। तो दिस आर आल्सो देयर मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल द समरी ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द एनिमल सेल। इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है जिससे कि एनाबॉलिक प्रोसेस हम कह सकते हैं, इसमें ग्लूकोज बन रहा होता है। सेलुलर रेस्टोरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और अगर हम फोटोसिंथेसिस बात करें, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज बन रहा होता है। वो भी इट इज़ आल्सो अ लॉन्गर प्रोसेस एंड वी कैन रीड इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर्स। So this is a brief summary of how we can understand about catabolic reactions, anabolic reactions, and bioenergetics with examples. So thanks so much, and we can also read in next lecture.